पर है। तो कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबले होने वाले हैं। तेज धूप और जबरदस्त गर्मी के बीच जीत का जोश है और चुनावी हलचल चरम पर पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर की हॉट सीट अनंतनाग राजौरी के लिए महबूबा मुफ्ती का नामांकन। महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने पर बहिष्कार का ऐलान किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहां मियां अल्ताफ से महबूबा मुफ्ती का होगा मुकाबला, लेकिन अनंतनाग सीट से गुलाम नबी आजाद नहीं लड़ेंगे चुनाव। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। उधर महाराष्ट्र में पवार परिवार की बेटी और बहू का बारामती में नामांकन। सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों के बीच मुकाबले के साथ ही परिवार के अंदर ही दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। और सिर्फ महाराष्ट्र ही क्यों, देश भर में कई सीटों में परिवार के सदस्यों के बीच ही हो रहे हैं दिलचस्प मुकाबले। तो पहले प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए, फिर अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, बाकी जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उनके तरफ से जनाब मियां अल्ताफ साहब ने आज अपना नॉमिनेशन पेपर जो है वो डीसी साहब को सबमिट किए हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में तमाम पार्टियों के ताउन से मियां साहब जो हैं एक अच्छी कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करेंगे। मेरा मेरिट देख के बारामती की माई बाप जनता जरूर मेरे साथ खड़ी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सबकी सेवा के लिए उनका आशीर्वाद मांगा और जीत के लिए भी आशीर्वाद मांगा कि सब भगवान के पास आशीर्वाद मांगने के लिए आते हैं। सीधे लिए चलते हैं केरल के पलक्कड़, जहां पर राहुल गांधी इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं। Work 8 hours a day. Our women work 8 hours a day. But then our women also work 8 hours extra at home bringing up our children. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, പുരുഷന്മാർ 8 മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളും 8 മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ ഇരട്ടി പണി ചെയ്യുകയാണ്. 8 മണിക്കൂർ അധികം പണിയെടുത്ത് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന ജോലി കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The men might not like to hear this, but Indian women work twice as hard as Indian men. ഇവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ യാതൊരു താല്പര്യവും ഇഷ്ടവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ ഇന്ത്യയിലെ പുരുഷന്മാരെക്കാളും ഇരട്ടി ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. And the truth is that Indian women do not get compensated for the 8 hours of work they do at home bringing up their children, cooking the food, looking after their parents. സത്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി പാചകം ചെയ്ത അച്ഛനമ്മമാരെ നോക്കി അതിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് തക്കതായ അംഗീകാരവും പ്രതിഫലവും അവർക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം. I can see all the men are smiling. എനിക്ക് കാണാം അവിടുത്തെ പുരുഷന്മാരൊക്കെ ചിരിക്കുകയാണ്. Because they know what I've said is the truth. കാരണം അവർക്കറിയാം ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചിരിക്കുന്നത്. So the next government is going to take a revolutionary step to compensate our women for what they do for our country. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഗവൺമെന്റ്, ഇന്ത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. We are going to do 3 things for them. അതിനുവേണ്ടി 3 കാര്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. The first thing we are going to do is we are going to make a list of every single Indian family below the poverty line. ആദ്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭാരതത്തിലെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക, പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുക. അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. तो केरल के पलक्कड़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और पूरे देश में जो चुनाव प्रचार है, चुनाव को लेकर उत्साह है, वो चरम पर है।
कई जगह दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिशिर शेलार नागपुर से और हमारी संवाददाता रमा त्यागी उधमपुर से। हमारे दोनों संवाददाता जुड़ चुके हैं। मैं पहले रमा के पास चलता हूं। रमा, महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से नामांकन कर रही हैं, वहां से गुलाम नबी आजाद इस बार मैदान से हट गए हैं, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि जो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर धारा 370 आर्टिकल 370 हटा तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए जमहूरियत की कि वो चुनाव लड़ रही हैं अनंतनाग से। बिल्कुल, आपको यही जो दोहरा चरित्र है, यही दिलचस्पी का केंद्र है इस वक्त। लालचंद्र जी, महबूबा मुफ्ती जो कि कहती थी 370 अगर हट जाता है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर 370 हट जाता है तो यहाँ पर देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। तमाम जो विरोधी बातें उन्होंने लोकतंत्र के विरोध में कही थी, अब उन्हीं को करते हुए, और केवल इसी में ही नहीं, महबूबा मुफ्ती पहले पीएजीडी का हिस्सा थी, वो जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद इंडिया अलायंस का वो हिस्सा बनी और जम्मू कश्मीर में सारी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो अब वो उस पर भी कायम नहीं रही। अब जबकि अनंतनाग से वो सीट लड़ रही हैं, हालांकि अनंतनाग में उनका अच्छा खासा जो है प्रतिनिधित्व है, अच्छा खासा उनका एक वोट बैंक है और इसीलिए उन्होंने लड़ने का फैसला किया होगा। लेकिन जिस तरह से तमाम समीकरण यहाँ पर बने हैं, जिस तरह से तमाम स्टेटमेंट्स यहाँ पर आ रही हैं, गुलाम नबी आजाद जो है अभी तक उनको माना जा रहा था कि वो खुद वहां पर लड़ेंगे। हमारी भी जब उनसे बात हुई थी तो हमने उनसे जब पूछा था तो हालांकि उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, लेकिन इनकार भी नहीं किया था। और इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अलायंस के साथ कैंडिडेट उतारा है, उसका भी अच्छा खासा वहां पर जनाधार है। हालांकि गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने सलीम परे को उतारा है, जो कि एडवोकेट हैं पेशे से, और वो पहले वहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थे वहां उसमें थे और अब आकर उन्होंने गुलाम नबी आजाद की पार्टी ज्वाइन की है। तो अपने आप में ये जो मुकाबला है ये खासा दिलचस्प हो जाता है। जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह की जो बातें आ रही हैं, मुद्दों की अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया अलायंस की ही बात करते हैं तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हालांकि वो मिलकर लड़ने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर कांग्रेस चुप होती है, तो कुछ मुद्दों पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो स्पष्ट जवाब देने से बचती है। तो अपने आप में इन सब चीजों को देखते हुए बेहद अहम ये मुकाबला हो जाता है और बेहद रोचक स्थिति। हालांकि एक ये सीट है, लेकिन एक सीट में भी इसमें कई मतलब जो है छिपे हुए हैं। अब ये बहुत सारे पैगाम यहाँ पर छुपे हुए हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास। लड़ा जा रहा है जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो 370 के बाद ये पहला इतना बड़ा चुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव है, और उसमें जिसमें कि देश का मुखिया चुना जाता है, उसमें जिस तरह से रमा, लौटता हूं आपके पास, रहिएगा हमारे साथ। रमा रुक जाइए, लौटता हूं आपके पास। शिशिर, जिस तरह से कि अब महाराष्ट्र में गठबंधन और गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच तो मुकाबला हो ही रहा है, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच देखिए, पवार वर्सेस पवार, सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार, ये भी बड़ा दिलचस्प बना रहा है मुकाबले को उस बारामती सीट पर जिस पर शरद पवार का, जिसको कहते हैं ना कि अभेद्य किला कहा जाता है। बिल्कुल, देखिए राजनीति में कोई भी चीज यहाँ पर जो है एक फिक्स नहीं होती है, और यही महाराष्ट्र में हम देख पा रहे हैं। हालांकि शिवसेना के हमने देखे कि 2 फाड़ हो चुके हैं, एनसीपी के 2 फाड़ हो चुके हैं। ऐसे में कई सारे नेता सामने आए हैं, चाहे वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से अगर बात करें, एनसीपी की तरफ से कई नेता, नए नेता सामने आए हैं। तो ये अगर शिवसेना की बात करें तो उद्धव ठाकरे के संग कई लोग जुड़े हुए। तो ऐसे में पार्टी जो है अलग अलग हो चुकी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अब चॉइसेस बहुत ज्यादा है लोगों के पास। मतलब आपके पास 2 शिवसेना है, आपके पास 2 एनसीपी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ बीजेपी है। तो ऐसे में ये अगर देखा जाए तो जो मतदाता है उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि चॉइसेस ज्यादा है, और ऐसे में मुशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टीज को कि किस प्रकार से वो चुनकर आए। हालांकि जो मुद्दे हैं चुनाव के वही रहेंगे, खासतौर पर जिस प्रकार से विकास के मुद्दे के बारे में हम बात करें, जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और साथ ही साथ बाकी स्थानीय मुद्दे हैं, इसको भी जो है तवज्जो देनी पड़ेगी। तो ऐसे में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर इंडिया अलायंस हो या इंडिया अलायंस हो, तो ऐसे में दोनों को भी ये देखना पड़ेगा कि जो भी उम्मीदवार वो खड़ा कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो जनता के सामने जाके उनका जो है प्रश्न वो सामने लाते हैं। तो ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, हालांकि विदर्भ का इलाका है, मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा। विदर्भ जो कि ईस्टर्न विदर्भ का इलाका जो है, एक समय में देखा था यहाँ पे मुकुल वासनिक, पीवी नरसिम्हा राव जैसे बड़े दिग्गज नेता उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, उनका प्रतिनिधित्व किया था। इस बार अगर देखा जाए तो स्थिति पिछले 10 सालों में बदल चुकी है। अब कांग्रेस का एक स्ट्रांग होल्ड बन चुका है, तो विदर्भ अब की सीट जो है, 5 सीटें अब कौन मारेगा ये देखना होगा। बिल्कुल, और महाराष्ट्र पर तो इस बार सभी की बिल्कुल खास नजर है कि महाराष्ट्र से क्या कुछ नतीजा आता है, क्योंकि महाराष्ट्र उन राज्यों में है जहां पर यह लग रहा है कि दोनों गठबंधनों के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जुड़ने के लिए, और रमा आपका भी जम्मू कश्मीर के उधमपुर से जुड़ने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने अपने वादे हैं, दावे हैं, गारंटी है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि किसकी गारंटी पर मतदाता और लोग भरोसा करेंगे। इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।